Hello students, welcome to the channel SNW Physics Classes. If you really understand the concepts taught here, please turn the black thumb blue. That means like the video, share with your friends and subscribe to the channel SNW Physics Classes. Do not forget to hit the bell icon for the latest updates. Stay connected with me on Facebook, Instagram, or you can write using my Gmail ID. Links are given in the description box. This is the series of NCERT solution of class 12 and today we are going to solve question number 1 to 5 of chapter 1, that is electric charges and fields. So let's begin with the video. Question number 1.1. What is the force between two small charge sphere having charges of 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed 30 centimeter apart in the air? ठीक है, पहले हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे. क्वेश्चन बोल रहा है देयर आर टू चार्ज स्फेयर. ठीक है, लेट इट बी Q1 एंड Q2. ठीक है, दोनों जो है चार्ज हैं और जो Q1 है उस पे चार्ज है 2 into 10 to the power minus 7 coulomb और Q2 पे जो चार्ज है दैट्स 3 into 10 to the power minus 7 coulomb. दोनों के बीच का डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर. ठीक है, हम लोग इसको यूज करेंगे Coulomb's law. लेट अस सी द सॉल्यूशन हियर. So given that Q1 is equal to 2 into 10 to the power minus 7 coulomb, Q2 is equal to 3 into 10 to the power minus 7 coulomb. और distance है that is 30 centimeter. तो मीटर में इसे कन्वर्ट करेंगे by dividing it with 100. 0.3 meter. Okay, using Coulomb's law, F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 into Q2 divided by R square. ठीक है, तो we know that the value of 1 by 4 pi epsilon naught is 9 into 10 to the power 9. ठीक है, Q1 यहाँ पे वैल्यू दिया है 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and Q2 is equal to 3 into 10 to the power minus 7 coulomb. Distance between them is 0.3. तो R का स्क्वायर होगा that is 0.3 into 0.3. इसको सॉल्व करने के बाद we will get 6 into 10 to the power minus 3 Newton. The force between the charges will be repulsive as they have the same nature. यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में देख सकते हैं कि charges have same nature, दोनों positively charged sphere है. ठीक है, नेगेटिव का कोई साइन नहीं है, इसलिए हम लोग ये समझेंगे कि दोनों पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर और लाइक चार्जेस रिपेल्स ईच अदर. तो इसमें कैसा फोर्स होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा. Question number 1.2. The electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb in air is 0.2 न्यूटन. ठीक है, यहाँ पे दो चार्जेस हम लोगों ने कंसिडर किया है, दोनों ऑपोजिटली चार्ज्ड पार्टिकल्स, ऑपोजिटली चार्ज स्फेयर्स हैं. ठीक है, फर्स्ट पे जो है प्लस 0.4 माइक्रोकुलम और दूसरे वाले स्फेयर पे जो चार्ज है दैट इज माइनस 0.8 माइक्रोकुलम. ठीक है, दोनों के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है 0.2 न्यूटन. Then we have to find out what is the distance between two sphere. ठीक है, दोनों स्फेयर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट करनी है. ऑल्सो व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फेयर ड्यू टू द फर्स्ट वन. ठीक है, पहले वाले की वजह से जो दूसरे पे फोर्स लग रहा है उसे भी हम लोगों को फाइंड आउट करना है. लेट अस सी द सॉल्यूशन हियर. Electrostatic force on the first sphere is F, that is 0.2 Newton. Charge on the first sphere Q1 is equal to 0.4 माइक्रोकुलम. माइक्रोकुलम को हम लोग लिखते हैं 10 to the power minus 6. ठीक है, तो Q1 हो गया 0.4 into 10 to the power minus 6 coulomb. Q2 is minus 0.8 microcoulomb which is equal to minus 0.8 into 10 to the power minus 6 coulomb. ठीक है, ये हमारा ये जो हमारा वैल्यूज दी हुई है वो हम लोग यहाँ पे लिख लिए. नाउ यूजिंग Coulomb's law again we have 1 by F. F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 into Q2 divided by R square. तो F की वैल्यू है 0.2 न्यूटन. बाकी वैल्यूज को हम लोग पुट करेंगे. 1 by 4 pi epsilon naught की वैल्यू है 9 into 10 to the power 9. ठीक है, Q1 is 0.4 into 10 to the power minus 6 coulomb. Q2 is 0.8 into 10 to the power minus 6 coulomb. और R की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, सारे वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे. जितना भी जो हमारा ये इंटीग्रेशन का टर्म है उसको हम लोग एक साथ लिख लेंगे और जो एक्सपोनेंट है 10 के पावर को एक साथ लिख लेंगे. ओके, ऑन कैलकुलेटिंग दिस वी विल गेट R square is equal to 144 into 10 to the power minus 4. और जब ये स्क्वायर इस R से हटेगा तो RHS में आकर के ये अंडर रूट हो जाएगा. ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 12 into 10 to the power minus
2, ठीक है, -2 यानी 100 से इसको डिवाइड किया हुआ है हम लोगों ने. सो मीटर को अगर हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे देन वी विल गेट सेंटीमीटर. सो द आंसर इज 12 सेंटीमीटर, मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू स्फीयर इज 12 सेंटीमीटर. Thus the distance between two spheres is 12 centimeter. Question number B ये कह रहा है what is the force on the second sphere due to the first one. तो क्या यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा both the sphere attract each other with same force. ठीक है, दोनों जो है सेम फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा. therefore the force on the second sphere due to the first one will be the same, that is 0.2 Newton. Question number 1.3. Check that the ratio KE square by GME into MP is dimensionless. ठीक है, सबसे पहली बात तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये K क्या है, E क्या है, G इन सारी वैल्यूज क्या है हम लोग यहाँ पे देखेंगे. K is the constant value of Coulomb's law, that is 1/4 pi epsilon naught. E is charge on electron, G is universal constant, ME is mass of electron, MP is mass of proton. और इस रेशियो को चेक करना है कि इट इज डायमेंशनलेस. Look up a table of physical constants and determine the value of these ratios. अब इसकी वैल्यू हम लोगों को भी फाइंड आउट करनी. पहले तो हम लोगों को दो क्वेश्चन यहाँ पे दिया है. सबसे पहले हम लोगों को इसको ये प्रूव करना है कि इट इज डायमेंशनलेस और उसके बाद इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई. ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज द आंसर. द रेशियो इज टू बी डिटरमाइंड इन गिवन बिलो. सबसे पहले रेशियो ये है where G is the gravitational constant और इसका यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. ठीक है, ME is mass, MP is also mass of electrons and proton. ये दोनों को हम लोग kg में लिखेंगे. E is electric charge, इसको कूलम में इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी. K कांस्टेंट वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका जो ऐसा यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. ठीक है, सारे वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे डायमेंशन लिखेंगे. ओके, तो ये हो जाएगा K का डायमेंशन है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. ओके, अगेन हियर इट इज कूलम स्क्वायर. ओके, यहाँ पे हम लोग देखेंगे G की वैल्यू है, G का जो ऐसा यूनिट है दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर और केजी स्क्वायर केजी इंटू केजी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन. ठीक है, तो ये और ये दोनों कैंसल. ओके, मीटर स्क्वायर ऑल्सो कैंसल्ड, न्यूटन ऑल्सो. अब केजी स्क्वायर डिवाइडेड बाई में और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये केजी दिस ऑल्सो कैंसल. तो टोटल हम लोग पहले ये क्या प्रूव कर दिए कि इट इज डायमेंशनलेस. M0, L0 एंड T0. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया कि इट इज डायमेंशनलेस. सो द गिवन रेशियो इज डायमेंशनलेस. ओके, नेक्स्ट हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ. ठीक है, फिजिकल कांस्टेंट को हम लोग देखते हुए ये सारी वैल्यूज को हम लोग पुट करेंगे इस इक्वेशन में, इस रेशियो में, और उसके बाद इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. लेट अस सी द आंसर हियर. गिवन दैट k इज इक्वल टू, अभी हम लोग फाइंड आउट किए थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू 9 into 10 to the power 9 न्यूटन. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इट इज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. Mass of electron 9.1 into 10 to the power minus 13 kg. Mass of proton 1.66 into 10 to the power minus 27 kg. G का वैल्यू हम लोगों के पास 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. सारे वैल्यूज को हम लोग पुट करेंगे. ठीक है, K की वैल्यू है 9 into 10 to the power 9. E स्क्वायर 1.6 into 10 to the power minus 19 को हम लोग 2 टाइम्स लिखे हुए यहाँ पे. E स्क्वायर है इस वजह से. G की वैल्यू है 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. मास ऑफ प्रोटॉन 1.66 into 10 to the power minus 27 kg, and which is approximately equal to 2.3 into 10 to the power 39. ठीक है, इस रेशियो का वैल्यू यहाँ पे कोई डायमेंशन नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि दैट द रेशियो इज डायमेंशनलेस. So the above ratio is the ratio of electric force to the gravitational force between a proton and an electron when the distance between them is constant. ये कह रहा है कि ये जो रेशियो है it is the ratio of electric force, ठीक है, to the gravitational force. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का जो इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका ये रेशियो है अगर उन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट हुआ तो.
Question number 1.4, explain the meaning of the statement electric charge of a body is quantized. ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट है, बोल रहा है कि हमें इस स्टेटमेंट का मीनिंग समझाना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का. दूसरा क्वेश्चन है why can one ignore quantization of electric charge when dealing with macroscopic, that is large scale of charges. ठीक है, अगर हम लोग बहुत लार्ज स्केल में चार्जेस ले रहे हैं तो उस केस में हम लोग क्वांटाइजेशन को इग्नोर करते हैं. लेट अस सी द आंसर हियर. द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड means that only 1 2 3 up to n numbers of electron can be transferred from one body to another. इसका मतलब ये है, सबसे पहला मतलब ये है कि क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा, वो फ्रैक्शन में या डेसिमल में नहीं हो सकता है. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू n नंबर्स, तो वो डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है. चार्जेस कैन नॉट गेट ट्रांसफर्ड इन फ्रैक्शन. ठीक है, हम लोग ऐसा नहीं कह सकते हैं कि 1.2 चार्ज जो है वो ट्रांसफर हुआ किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे. हम लोग सिर्फ कहेंगे 1 चार्ज 2 चार्ज, इस तरह से. Hence the total charge processed by a body is only an integral multiple of electric charge. ठीक है, तो जितना भी चार्ज ट्रांसफर होता है किसी भी बॉडी पे, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे, वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ना कि कोई फ्रैक्शन में होता है. नेक्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ पे, why can one ignore quantization of electric charge when dealing with macroscopic. ठीक है, जब बड़े लेवल पे हम लोग चार्ज को देखते हैं, लार्ज स्केल पे चार्ज को देखते हैं, उस केस में हम लोग क्वांटाइजेशन को इग्नोर करते हैं. क्यों? इन द केस ऑफ लार्ज स्केल ऑफ माइक्रोस्कोपिक चार्जेस, the charge which is used over there is comparatively too huge to the magnitude of electric charge. ठीक है, जब हम लोग बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं, तो उसमें बहुत सारे चार्जेस होते हैं, और बहुत सारे चार्ज मीन नंबर ऑफ चार्ज को हम लोग इग्नोर करते हैं क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है. Hence on the macroscopic level the quantization of charge is of no use. ठीक है, जब हम लोग लार्ज स्केल पे चार्जेस को लेते हैं तो वहां पे नंबर ऑफ चार्जेस को नहीं काउंट करते हैं. therefore it is ignored and the electric charge is considered to be continuous. ठीक है, इसलिए हम लोग इसको इग्नोर करते हैं और इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग कंटिन्यूअस मानते हैं वहां पे. क्वेश्चन नंबर 1.5, when a glass rod is rubbed with a silk cloth charges appear on both. ठीक है, सबसे पहली बात ये कह रहा है कि जब हम लोग किसी ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ पे रब करते हैं तो चार्ज जो है वो दोनों पे आता है. A similar phenomenon is observed with many other pairs of bodies. Explain how this observation is consistent with the law of conservation of charge. ठीक है, यहाँ पे तो ये पूछ रहा है कि इस तरह से बहुत सारे बॉडी पेयर्स पे हम लोग देख सकते हैं कि चार्जेस जो है उस पे ट्रांसफर हो गया दोनों बॉडीज पे. तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को कैसे एक्सप्लेन करता है, इसमें हम लोगों को ये दिखाना है. लेट अस सी द आंसर. व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर अ चार्ज इज डेवलप्ड ऑन बोथ बॉडीज. अगर हम दो बॉडीज को देखें, अगर दोनों को आपस में रब कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को हम लोगों ने लिया है. दीज चार्जेस आर इक्वल बट ऑपोजिट इन नेचर. दोनों चार्जेस जो है वो इक्वल है बट उनका नेचर जो है वो ऑपोजिट है. ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ट्रांसफर हो गया सिल्क क्लॉथ पे, लीविंग इट पॉजिटिवली चार्ज. ग्लास रॉड को पॉजिटिवली चार्ज छोड़ करके वो इलेक्ट्रॉन्स पे ट्रांसफर हो गया. एंड दिस फिनोमिनन ऑफ इंड्यूसिंग अ चार्ज इज नोन एज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. और इस फिनोमिनन को हम लोग चार्जिंग बाय फ्रिक्शन बोलते हैं. द नेट चार्ज ऑन बोथ ऑफ द बॉडीज इज 0. ठीक है, दोनों पे जो है जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव चार्ज होगा. दोनों बॉडी का अगर हम लोग नेट चार्ज फाइंड आउट करें दैट इज 0. एंड द रीजन बिहाइंड इट इज दैट एन इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज रिपेल्स इट. ठीक है, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज जो है उसको रिपेल कर रहा है, इसलिए हम लोग उसको बोलेंगे कि नेट चार्ज ऑन बोथ द बॉडीज आर 0. When we rub a glass rod with silk cloth, charge with opposite magnitude is generated over there. This phenomenon is inconsistent with the law of conservation of energy. ठीक है, जब हम लोग ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं तो ऑपोजिट और इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज जो है वो जनरेट होता है, जो ये बताता है कि इट इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. A similar phenomenon is observed with many other spheres. ठीक है, जैसे हम लोग पेपर को स्केल से रब करके अपने हेयर्स में रब करते हैं जब स्केल को, तो बिट ऑफ पेपर्स को वो अट्रैक्ट करता है. और भी जब हम लोग कॉम्ब करते हैं अपने हेयर्स को तो वो भी अट्रैक्ट कर लेता है बिट ऑफ पेपर से. इस तरह का बहुत सारे पेयर्स होते हैं जो हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं.
If you have any doubt, any confusion in any of the question in the video, please comment in the comment section, like, share and subscribe to my channel. Thank you very much for watching.